Hello, my dear student. Hope you all are good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So, today I am going to explain the wonderful topic. It is very high weighted topic of motion in 2D, motion in plane. The topic name is projectile motion. The question is that what is projectile motion? When you are throwing the ball in space and the ball which comes down towards the earth under the effect of gravity. Suppose you are throwing the ball in space and the ball comes down towards the earth under the effect of gravity is called projectile motion, right? यस अगर आप बॉडी को ये बॉडी है उसको स्ट्रेट लाइन में फेंक दिए तो ये क्या हुआ मोशन इन 1D हो जाता है ओके राइट और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2D द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल with initial velocity u by making an angle of theta. Dear student, the horizontal component of this ball is here is ux equal to u cos theta and the vertical component here is uy equal to u sin theta. Okay, right? See, but most important point here you have to remember here is that the horizontal component, what is horizontal component here? Horizontal component ux equal to u cos theta always be constant. Always क्या रहता है ये? Always constant रहता है, right? But vertical component that is uy equal to u sin theta and this may be change. तो ये क्या होता है चेंज होते रहता राइट इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक है टाइम ऑफ फ्लाइट एक है हाइट और रेंज ये सबसे इंपॉर्टेंट है और देखें सबसे इजी वे क्या है इसको समझने के लिए राइट सी here we have to find out three most important point. Number one, time of flight. Here is that time of flight, that is called capital T. Second one is that height h, and third one is range R. Okay, and see the time of flight and height is based on the vertical component, that is u sin theta, and the range is based on the horizontal component, right? If you want to write these 2 points you can write also here. See the time of flight t and h based on vertical component, right? And range, that is r, based on horizontal component, right? See, the first one we have to find out time of flight. What is time of flight here? See, very important. Now see ये वाला देखते हैं अपन कैसा लिखा रहा. The first point here is time of flight. What is time of flight? Time of flight is capital T, right? See, now you are throwing the ball in upward direction. Suppose like this. Now you are throwing the ball in upward direction. At maximum height, the final velocity is 0
but initial velocity here is that uy equal to u sine theta. But when you are throwing the ball in upward direction, the acceleration will be what? Minus g. Acceleration equal to क्या हो जाएगा? Minus g. See, from the equation of motion, v equal to क्या होता है? U plus 8t. Here final velocity at maximum height is 0, but remember one thing, but Vx always is constant. Suppose you are going to find out here at point here, resultant is V, here is that Vx, here is that Vy. Everywhere the horizontal component, suppose here, everywhere, horizontal component is same, but vertical component may be changed. See, the final velocity here is that 0. You can write here uy और प्लस ए की जगह अपन लिखेंगे माइनस जी और ये टी. माइनस जी टी इधर चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा यू वाई नथिंग बट यू साइन थीटा. तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यू साइन थीटा बाय हो जाएगा जी. दिस इज द ओनली टी. टी मीन्स व्हाट? टाइम ऑफ एसेंट. अब बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ गया तो टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बाय जी, और ये फिर बॉडी नीचे की तरफ भी आएगा तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट. तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है दोनों क्या यहाँ पे क्या होता? सेम होता. तो सी हियर द टाइम ऑफ फ्लाइट, सी टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. तो t इक्वल टू वी कैन राइट हियर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. दोनों क्या होता? सेम होता. t प्लस टी क्या हो जाएगा? ये 2t. देयरफॉर कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा u साइन थीटा बाय हो जाएगा ये g. ओके, आप इससे इसको ये कर लो, राउंड कर लो. तो ये हो गया आपका 2u साइन थीटा बाय जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट. अब हम इसके बाद हम निकालेंगे क्या? बोलो, हाइट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप इसको आप जो है कॉपी कर लो, राइट. टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम पढ़ेंगे क्या? हाइट. व्हाट इज हाइट एक्चुअली? सी, सेकेंड में आ जाएंगे अपन. See, second point here is that, second one is that height. What is height? See, when you are throwing the ball in upward direction like this, आप इस तरह से इसको यहाँ पे पहुँचा दो तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा, राइट. बट द फाइनल वेलोसिटी हियर इज दैट 0, बट एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जी, राइट. तो सी हियर प्लीज, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2s. द फाइनल वेलोसिटी हियर इज दैट 0, and now see that please, u value here is that u y square 2 into a value is that minus g, or s value here is that you can write like this h. आप इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा h ले लेंगे और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ इस जगह से. तो इधर से आप जा रहे तो ये u y इक्वल टू क्या हो जाएगा? u साइन थीटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. और ये हो जाएगा आपका h. हियर प्लस माइनस 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 2gh उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2gh इक्वल टू यू वाई मीन्स व्हाट? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये जो है ना, ये यू वाई मतलब क्या हो? यू साइन थीटा. तो इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट
H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बा हो जाएगा ये तुम्हारा 2g, राइट. This is the H, height, right? It's very important. After that we can find out range. What is range actually? See, everyone please. See, third point is range. Range is R. Suppose now you are throwing the ball like this. When you are throwing the ball in a space and it comes down under the effect of gravity is nothing but projectile motion. So see the distance, the complete distance of this ball is here r, that is called range. So here range is nothing but distance. So now see that please my dear loving student, it's very easy, you can easily do it. See, the range is nothing but distance, as you know it, distance equal to speed into time. Now see here please, what is the speed here? Ux, that is called u cos theta, from here to here is range. Here to here is range, right? So u equal to, see here please, speed here is that u cos theta into time is time of flight. Now see please, here is that u distance is nothing but r, range. U cos theta into, and t is nothing but time of flight. Already you have find out here 2u sin theta by g. What is that? 2u sin theta by, आप बाय इसके साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ बाय जी करोगे तो क्या हो जाएगा देखो. तो फाइनली r इक्वल टू u स्क्वायर एंड 2 sin थीटा cos थीटा बाय क्या हो जाएगा ये g, right? See please, तो 2 sin theta into cos theta equal to क्या हो जाएगा sin 2 theta, as you know it my dear girls and boys also. ये बड़ा important है ट्रिगोनोमेट्री में, as you know it, 2 sin theta into cos theta equal to क्या होता sin 2 theta. Just you can use this one, it's very important formula है ये. तो see here please, so r equal to क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 theta बाय हो जाएगा यहाँ पे g. This is also a range formula and this one is also a range formula. Okay, now see please, this 3 is very important. This 3 is very important. Yes, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. अब सवाल यह है कि हमको इसमें और भी क्या क्या चीज फाइंड आउट करना है. ओके, सी अब इसके जो कुछ गोल्डन की पॉइंट्स है, जो कुछ एप्लीकेशन है किसके, इसके एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का. कुछ एप्लीकेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और अब ये एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको क्या करना अच्छे से याद रख लेना है आपको. सो चलो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं यहाँ पे. तो अभी हमने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज दैट? एप्लीकेशन ऑफ ये, अगर आपको ये 3 फार्मूला मालूम है, फर्स्ट फार्मूला मैंने क्या दिया नंबर 1 में, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कॉल्ड 2u साइन थीटा बाई जी. दूसरा फार्मूला हमने क्या दिया, हाइट का हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर
हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बा हो जाएगा यहाँ पे कितना 2g बताया था राइट ना अभी मैंने, यस 2g राइट, वेरी गुड, ये हो जाएगा 2g। और रेंज इक्वल टू फार्मूला हमने क्या दिया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बा हो जाएगा g। This is the first 3 formula and this is very very important. If you will study this one, you can solve number of numericals based on it. See, second point, second here we are going to write here, second point, when theta equal to 45 degree, then when theta equal to 45 degree, then see please, see theta equal to 45 degree, then we can find out h first. Now see here please, h equal to, here is that u square, or here is that sin square, और here 45 degree बा हो जाएगा यहाँ पे 2g। sin 45 is nothing but, sin 45 is nothing but 1 by root 2 का होल स्क्वायर, अब बा हो जाएगा यहाँ पे क्या 2g, दिस इज h। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर बाई 2g। 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो h इक्वल हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बा हो जाएगा ये 4g। ओके, इस पॉइंट को जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो h इक्वल टू क्या हुआ यू स्क्वायर बाई 4g, राइट। अब हम जो है यहाँ पे देखो तो क्या है r की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए प्लीज, r की वैल्यू अगर निकालेंगे हम यहाँ पे सी, r की वैल्यू निकालेंगे r इक्वल टू, r फॉर्मूला इज यू स्क्वायर, हियर इज दैट साइन, और 2 थीटा है ना, तो लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 45 डिग्री बाय कितना हो जाएगा ये g, तो साइन 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा साइन 90, राइट। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, तो ये यू स्क्वायर और ये साइन 90 डिग्री बा हो जाएगा जी। साइन 90 वैल्यू हियर इज, साइन 90 वैल्यू हियर इज साइन 90, दिस वन इज साइन 90 वैल्यू इज 1, राइट, साइन 90 वैल्यू इज 1, तो साइन 90 बेटा 1 हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन 90 इज 1, दैट इज कॉल्ड r इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बा हो जाएगा जी। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितना हो गया यू स्क्वायर बाय जी। अब इसमें और इसमें क्या कंपैरिजन आ रहा है देखिए प्लीज, सी h को अपन कैसा लिख सकते हैं, h इक्वल टू, इसको देखो 1/4 को अगर हम बाहर करेंगे, सी प्लीज, ये 1/4 इंटू ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा जी, राइट। अब ये यू स्क्वायर बाय जी किसकी वैल्यू है टेल मी प्लीज, ये यू स्क्वायर बाय जी जो है वैल्यू है किसका, ये है वैल्यू है आपका आर का, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना प्लीज टेल मी, ये हो जाएगा तुम्हारा h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लगा देंगे हो जाएगा तुम्हारा r बाय 4। तो ये तो फॉर्मूला आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो h इक्वल टू क्या हुआ r/4, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा 4h। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में आपको आएगा, चाहे वो नीट भी हो जाए, वो जेई किसका भी हो जाए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सी, अब h मैक्सिमम अगर मेरे को निकालना है तो कैसा निकालते हैं देखो, इट्स वेरी इजी ऑल्सो, सी प्लीज, सी h मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर जो है ना मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, थीटा इक्वल टू कितना रखना 90 डिग्री। अगर मैं थीटा देखो यहाँ पे कितना है h इक्वल टू h, एक सेकेंड, h इक्वल टू कितना है यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर 90 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 2g, राइट।
ये देखो तो u स्क्वायर और साइन 90 कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये जाएगा u स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, राइट। तो देखिए तो आप क्या लिख सकते हो, तो h मैक्सिमम इक्वल टू ये 1/2 और u स्क्वायर बाय 2 किसकी वैल्यू है, g किसकी वैल्यू है r की, तो ये लिखेंगे अपन r मैक्सिमम। सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर r maximum equal to 2 into h maximum. This is very important. This is very important. It's very important. इसको आपको कैसा भी दिमाग में रखना, तो ये 1 2, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन हो गया इसका। थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अगर अपने को निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कहीं पे भी निकालना है, राइट। सी, तो थर्ड एप्लीकेशन हियर इज दैट, third application we will see here, third application here please see, velocity निकालना है, velocity, this is also very important। v इक्वल टू क्या होता, v वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx i वेक्टर प्लस vy j वेक्टर, ओके। ये किसके बारे में है, ये कैसा लिखते हैं इसको अपन, इसको हम आराम से कर सकते हैं, देखो सी, very important, if you are going to find out the velocity in horizontal component, now see here please, velocity in a horizontal component that is called beta vx, right। आजा और इसके बाद हम फिर क्लास लेंगे। okay right, see, since according to the equation of motion v equal to क्या हो जाएगा, u plus at, ओके राइट। तो x कंपोनेंट में निकाले तो ये क्या हो जाएगा, vx इक्वल टू ये हो जाएगा ux और ये 0 इंटू ये t, वाई बिकॉज इन हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये लिखेंगे अपन vx इक्वल टू u cos थीटा, ये vx की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। सिमिलरली वेलोसिटी इन वर्टिकल component, velocity in vertical component, that is vy c, since v equal to u plus at, तो ये लिखेंगे vy इक्वल टू हो जाएगा क्या uy, और ऊपर की तरफ आप बॉडी फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो a इक्वल टू क्या था माइनस जी होता, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी, तो फाइनली vy इक्वल टू, but vy equal to here is that vy equal to ये हो जाएगा u sin theta minus gt। तो फाइनली रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी यू कैन इजिली फाइंड आउट, see that therefore v vector equal to क्या हो जाएगा, here is that vx I vector plus vy j vector, okay। vx value here is that u cos theta I vector plus u sin theta j vector, this is what here, this is v vector, this is the resultant of velocity, this is the resultant of, this is the resultant of velocity, कौन सा velocity है, फाइनल velocity, okay right, it's very simple। सी, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, यू कैन इजिली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, यू कैन इजिली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, और यू कैन राइट योर रिजल्टेंट, you can find out, you can write your resultant magnitude, resultant magnitude here is that कितना हो जाएगा, टेल मी, resultant magnitude here is that v vector का mod, that is called resultant magnitude of velocity, equal to हो जाएगा आपका ये vx square plus vy square, this is very important, please write down this one। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको प्लीज लिख लीजिए। यहाँ vx की वैल्यू क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और vy की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा, वेरी राइट, ओके राइट। सी, अब वेलोसिटी के बाद हमको क्या निकालना होता है, कोई बता सकता है,
हम इसके बाद ना हम निकालेंगे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इजीली। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के बाद अब जो है क्वेश्चन एक पूछता है इसमें से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। आप जो है यहाँ लिख सकते एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हो जाएगा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको राउंड नहीं भी कर तो चलता। तो थीटा इक्वल हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स, ओके। ट्राई टू रिमेंबर दिस वन प्लीज, ट्राई टू रिमेंबर दिस वन, okay, right, very important. See, my dear student, after velocity you can easily find out the distance, okay. Now see that, see, इसको ले लो वीडियो पॉज करके, राइट। नाउ सी विच वन इज दैट, थर्ड पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे अपन अब, ये फोर्थ पॉइंट, विच वन इज फोर्थ इज डिस्टेंस, fourth one is distance is s, okay, yes, distance s, resultant of the distance is s x I vector or s y j vector, right. The question, this one is horizontal component of the distance and this one is vertical component of distance, yes or no, yes. See my dear student, इंशाल्लाह आपको जो मज़ा आएगा, अभी तो ये शुरुआत है, अगर इस तरह से मौका मिलेगा तो हम जो है इसी तरह पूरा टाइम, बस इंपॉर्टेंट है टाइम मिलना, टाइम के साथ जैसे जैसे मिलते जाएगा हम इंशाल्लाह ये वीडियो आपको डालते जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये पूरा आप पढ़ लिए तो इंशाल्लाह नीट पक्का है। अगर इसमें अगर प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आएगा तो जितने भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ ना पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के, उससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा, राइट। सी, तो फर्स्ट निकालेंगे किसका, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। ये निकालेंगे अपन डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल component. Distance in horizontal component is what? Distance in horizontal component is what? See here please, as equal to ut plus बेटा क्या होता at square, sorry, as equal to ut plus half at square. If you are going to find out the distance in horizontal component, so it is एस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या है यू टी, तो यू किस में लेंगे अपन, यू एक्स में ले लेंगे और यू एक्स इंटू टी। और माई डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, जीरो होता सर। तो ये पूरे इधर हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। यस सर, वेरी गुड सर। तो बेटा देखो तो एस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स इज नथिंग बट क्या हुआ, देखो तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा इंटू टी। ये क्या निकल गया, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। यस सर, वेरी गुड। नाउ सी देखो, अब डिस्टेंस इन वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, डिस्टेंस इन वर्टिकल कंपोनेंट, डिस्टेंस इन वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। कैसा निकालते भाई, देखो तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले, फर्स्ट एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, टेल मी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इन वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एस वाई, इसको लिखेंगे अपन एस एक्स और ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एस वाई। तो एस वाई इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, और ऊपर की तरफ जाएगा वर्टिकल में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस जी, यस करेक्ट, वेरी गुड, अच्छा कॉपी करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 1/2, एक जगह क्या लिखेंगे माइनस जी इंटू बेटा ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट। तो एस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
यस, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा ये एस वाई निकल गया, एस वाई, हाँ सर एस वाई निकल गया, एस वाई निकल गया, डिस्टेंस इन वर्टिकल कंपोनेंट निकल गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड 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 गुड, राइट, यस। सो अब क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, सी एस, ये निकालना है अपने को, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, देखो बहुत अच्छा। सी हियर प्लीज, एज वेक्टर इक्वल टू, राइट, एज वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एक्स आई वेक्टर और एस वाई जे वेक्टर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एस एक्स की वैल्यू कितना है, ये है आपका यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये आई वेक्टर, और बेटा यहाँ पे कितना है, एस वाई कितना है बताओ, एस वाई अपना है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो, यस सर, ये निकल गया आपका डिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, वेरी गुड, सी, ओहो, यस 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 यस, सी। अब क्या निकालना है, उसी तरह आप रिजल्ट, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो आपको मालूम है क्या निकालते बेटा, रिजल्टेंट, पिंक कलर ले लिया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, प्लीज टेल मी। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एस वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको अच्छे से आप क्या करना है, याद रखना है प्लीज, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ उसको भी, तो ये वीडियो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के बाद क्या पढ़ना है भाई, 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट क्या है देखिए, 6 पॉइंट ही है, हाँ राइट, नहीं 4 के बाद 5 आता ना, स्लाइड 6 हो जाएगा, राइट। तो देखो 5 पॉइंट में आपको अच्छे से दिमाग में इस बात को रखना है प्लीज। सपोज यू आर टेकिंग हियर वन बॉल, एक बॉल ले लो, when ball you are throwing the ball in space which comes downward under the effect of gravity, it's called projectile motion, right। ये अपना डिफिनेशन से देख लो आप। अब यहाँ देखो, अगर बॉडी मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो सी एट मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट, और ये मैक्सिमम हाइट पे कितना हो गया, ये यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, देखो इधर भी 90, इधर भी 90, देखो 90 डिग्री जो है, एट थीटा इक्वल टू, अगर 90 डिग्री रख दिया हमें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या होता मालूम, एस्किलरेशन, वेक्टर एस्किलरेशन, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 0, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अब देखो ये कि 90 से कम है इधर, तो अगर 90 से कम रहा, राइट, 0 to 90, यहाँ से 0 से लेकर ये पॉइंट, ये 0 दिख रहा है, यहाँ से 0 से लेकर 90 तक में, तो एट जो है बिटवीन 0 डिग्री टू कहाँ तक, 90 डिग्री तक, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सब के सब ये हो जाएगा इतना, 0 से लेकर कहाँ तक, 90 डिग्री तक पॉजिटिव हो जाएगा, और एट बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 90 टू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस, निगेटिव वैल्यू आएगा। तो इनको ना अच्छे से आप लोग क्या करो, याद रख लो। अब हमारा 5 हो गया, तो मैं 6 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 पॉइंट हियर इज चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं, चेंज इन वेलोसिटी इन वर्टिकल।
तो वर्टिकल में डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट में। चेंज इन वेलोसिटी किस में निकाल रहे हैं, वर्टिकल में निकाल रहे हैं। तो एक सेकेंड, समझ गए ना, ओके राइट। अगर मैं निकालूं उसके बाद अगर मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता, मास इंटू क्या होता। अगर मैं चेंज निकाला तो क्या हो जाएगा, लाइक दिस, मास को इससे मल्टीपल कर देना है तो कितना हो जाएगा, m इंटू ये 2u साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2mu साइन थीटा, राइट। तो देखो, तो अगर मैं निकाला 7 पॉइंट चेंज इन मोमेंटम, ये सारे एप्लीकेशन को आप फॉर्मूले को याद रख लेना है। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये m इंटू डेल्टा यू, राइट। कितना हो जाएगा ये 2mu साइन थीटा, राइट। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, बहुत आर इंपॉर्टेंट। ये कलर कैसा दिख रहा है, लाइक दिस, ये। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और 8 पॉइंट क्या है, ओके राइट। 7 के बाद क्या होता है, 8 पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन H एंड T। चूंकि ये वन शॉट चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, वन शॉट अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है तो सी प्लीज देखो, H इक्वल टू क्या लिखेंगे, H इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, H इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, H इक्वल टू हो जाएगा 1/8 GT स्क्वायर, 1/8 GT स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लेना है। देखो, अगर इसको प्रूफ करना तो प्रूफ भी हो जाएगा, क्योंकि H की फार्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना होता है, 2g होता है। और T का फार्मूला क्या होता है, T इक्वल होता है 2u साइन थीटा बाई g होता है, ओके। तो प्रूफ करना है, प्रूफ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो, H की वैल्यू यहाँ कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाय कितना हो जाएगा 2g, ये कितना 1/8 और ये g, और T का स्क्वायर बोल रहा है बेटा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय हो जाएगा क्या, जी स्क्वायर, ठीक है, ओके राइट, ओके सर, राइट सर, बढ़िया सर, अच्छा सर। सी, ये बेटा जी जी क्या हुआ, कैंसिल, एक जी बच गई है 4 से, बेटा ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखो तो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय बेटा क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो, LHS इक्वल टू क्या हुआ, RHS। तो अपने को प्रूफ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपको ये याद रखना है कि H इक्वल टू कितना होता है 1/8 GT स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद देखो, 8 के बाद मैं 9th वन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी प्लीज, 9th वन हियर, 9th वन क्या है, टेन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे 4h/r। ये भी अच्छे से याद रख लेना है आपको। और ये भी होता है आपका कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है 4h/r इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप याद रखो प्लीज, ओके। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद, राइट। 10th वन जो है क्या है, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन केस ऑफ 10th पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इधर दिख रहा है आप लोग को, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में, राइट। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो क्या होता, रेंज, फर्स्ट पॉइंट तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, फर्स्ट पॉइंट तो रेंजेज आर सेम होता, रेंजेस आर सेम, दैट इज कॉल्ड आर सेम, दैट इज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। ये बात को आपको याद रखना है।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, H1 प्लस H2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G, राइट। तो सेकेंड पॉइंट जो है इसका क्या होगा, सी सेकेंड पॉइंट H1 प्लस H2 इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2G। एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस वन इज T1 इंटू T2, यस, T1 इंटू T2 इक्वल टू कितना होता है, 2R बाई जी। अच्छा, यहाँ H1 H2 का मतलब समझे आप, इसका मतलब रेंजेज आर सेम। जो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में, अगर फॉर एग्जांपल T1 इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो एक एंगल थीटा रहेगा और T2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा। ये हो जाएगा T1 की वैल्यू। तो T2 की वैल्यू कितना, 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में ना ये चीज़ें होगा, और इसको क्या करना है, अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। यस यस, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th 6 7 8 9 10 हो गया। उसके बाद हालांकि कुछ जगह पे क्या किया, इसको 10 11 12 13 तक भी इस तरह से आपको इसमें क्या किया दिया हुआ, राइट। तो देखो ये अपना हो गया इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको वीडियो पॉज करके आप ले लो इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो ये ऑल भी हमारे कुछ एप्लीकेशंस है, तो हम डायरेक्टली इसको देख लेंगे, राइट। हमने इसको जल्दी वीडियो को जल्दी फास्ट थोड़ा से भगा दिया, यहाँ पे जल्दी देख लेंगे इसको। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो 11th हमारा एप्लीकेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है तो आपको मालूम ही है, y इक्वल टू क्या रहेगा, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर होगा बेटा। मतलब y की वैल्यू अगर जो है कितना होगा, 3x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो अगर वहाँ पे पूछेगा आपको रेंज की वैल्यू क्या होगी, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है आपने, a बाई बी। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितना होगा, ये 2, ठीक है। उसी तरह h का भी निकाल सकते हैं आप। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर और 4 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे कितना, ये b पॉइंट b है और ये क्या है a है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 3 3 9 बाई 8। तो इस तरह से अपन न्यूमेरिकल को कर लेंगे इजीली, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a, राइट। इफ u वेक्टर, इनिशियल वेक्टर इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। यू एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ये यू कॉस थीटा है, और यू वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, यू साइन थीटा, राइट। देन तब क्या होगा, h इक्वल टू डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g और t इक्वल टू 2u बाई जी, राइट। और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy बाई जी। ओके, क्लियर, इट्स वेरी इजी। सी अगर इफ u वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर रहा, देन जो है ना टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टी इक्वल टू 2u बाई जी और h इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2g और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी बाई जी। एक्चुअली जैसे कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लो r ही निकालना है, तो अगर मैंने u वेक्टर इक्वल टू कितना दे दिया, ये दे दिया मैं 2i प्लस 3j और प्लस में दे दिया यहाँ पे 4k, और आपको यहाँ पे r निकालना है। मान लो आपको r रेंज निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ए की वैल्यू यहाँ पे बेटा ये कितना है, a वैल्यू है, ये तुम्हारा b वैल्यू है और ये आपका c वैल्यू है। a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और b की जगह पे कितना है 3, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू कितना 4 और बाय क्या कर देना है जी। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये अपना क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट, एप्लीकेशन भी आ गया कंप्लीट, वन शॉट। और इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है कंटिन्यू आपके लिए, जब तक नीट का एग्जामिनेशन नहीं आएगा तब तक हम ऐसे वन शॉट जो है एवरी टॉपिक पे आपको देते रहूँगा। तो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, जो लोग न्यू आए हुए हैं, तो माय डियर लविंग स्टूडेंट, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है,
आप इनको क्या करोगे, थोड़ा सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकॉन वगैरह भी बजा देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, राइट।